Hello students, this is the third part in the continuation of aldehydes and ketones. If you have not seen the two videos, just see the link in the description box and see those videos. So in this video we will going to learn some important chemical reactions of aldehydes and ketones, the reactions which involves the alpha hydrogens. Okay, so for example, aldol condensation reaction, then benzoin condensation reaction, Perkin condensation reaction and Cannizzaro reaction. These are some important reactions. Okay. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने स्टार्टिंग पार्ट और आगे सारी चीज़ें कवर की थी। We had covered the classification, naming, physical properties, declaration, and some chemical properties of aldehydes and ketones. Okay. In the last lecture, what we had covered the chemical properties of aldehydes and ketones, which is basically these reactions. Either a nucleophilic addition reaction where we can add some reagents, some reactive elements to our aldehyde and ketone. So these typical reactions are nucleophilic addition reaction, addition of water, addition of alcohol, and cyanide. Then addition, elimination reaction. Some reagents are added to our compound. We will get some intermediate, and after elimination of something, or after elimination of, for example, water molecule from the intermediate, we will get the desired compound. Okay, these reactions are known as simultaneously addition, elimination reaction. Then next reactions are the reduction of aldehyde and ketone. So reduction of your aldehyde and ketone. Then oxidation of aldehydes and ketones. And finally, the reactions involving alpha hydrogen, or we can say that the reaction of CH3 group, which is present on your, or R group, which is present or adjacent to your carbonyl group. So these are not the reactions of your C double bond O. These are the reactions of the adjacent R group. So now we are dealing with this last category, the reaction involving alpha. So one of the most famous reactions in this case is aldol condensation reaction. What is happening here? We are reacting to aldehyde molecules. What we are getting a condensed compound is having both the functional groups. So aldol means combination of aldehyde and alcoholic group. So CHO is also there in this structure. OH group is also there in this structure. Okay. So what we are getting this example from condensation of two aldehyde molecules. एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर अटैक होगा और फाइनली आप लोगों को मिलने वाला है आपका कंपाउंड। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है। हम लोग ने दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे, दो एसिटाल्डिहाइड, और हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पर 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल रिएक्शन है, जहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर शर्त ये रहेंगी, रिएक्शन के लिए कंडीशन ये रहेंगी कि जो भी अल्डिहाइड हम लोग यूज करेंगे रिएक्शन में, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये कि एग्जाम्पल आपके सामने एसिटाल्डिहाइड की है, तो C डबल बॉन्ड O जो है इसमें CHO का C डबल बॉन्ड O, उसके बाजू में जो कार्बन एटम है वो अल्फा कार्बन है और उसको जो अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो बेसिकली मिनिमम आपके पास में ऐसा अल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर मैं ये रिएक्शन परफॉर्म करूंगा और फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में करूंगा तो होगी क्या रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कंडीशन ये रहेगी कि एक R ग्रुप होना जरूरी है उसमें ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इसमें ये थी कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग द रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड ग्रुप्स। यहाँ पर एक अल्डिहाइड के पास में देखो आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है ना, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि अल्फा हाइड्रोजन ही अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपको अगेन एक अडक्ट मिल रहा है जिसके पास में दोनों की फंक्शनल ग्रुप्स हैं, CHO भी है और OH ग्रुप भी है। ठीक है, मगर कंडीशन क्या है ये वाली रिएक्शन में, क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में, कि दोनों भी जो अल्डिहाइड हम लोग यूज करेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज योर क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर aldehydes and ketones। तो यहाँ पर देखो ये और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हम लोग ने कंबाइन किए और यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर अल्डिहाइड जो है उसके पास में है अल्फा हाइड्रोजन और कीटोन के पास में नहीं है। कीटोन के पास में है क्या, कीटोन के पास में अल्फा है। ठीक, ये बेसिस पे रिएक्शन परफॉर्म हुई है।
आपको डिजायर्ड कंपाउंड मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। अगेन यहाँ पर हम लोग पर्किन रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं और एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर से ये होने वाला है कि हम लोग कंडेंसेशन को बनाने वाले ये रिएक्शन में दो मॉइटी फ्यूज होंगी और एक स्ट्रक्चर एक कंपाउंड आपको मिलेगा इसमें। उसके व्हाट इज हैपनिंग इन पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, benzaldehyde reacts with acetic anhydride in the presence of sodium acetate to form cinnamic acid। अभी एक चीज इसमें ये ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जो भी हम लोग बेंजाल्डिहाइड तो डेफिनेटली रहने वाला है यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल, बट बेंजाल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट किससे करवाएंगे मालूम, हम लोग एक ऐसे एसिड से ऐसे अनहाइड्राइड से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पर एसिडिक अनहाइड्राइड से, और उसी का हम लोग सॉल्ट यूज करेंगे जैसे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ, अगर एसिडिक अनहाइड्राइड से मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडेट में यूज करूँगा। दोनों भी चीज सेम रहना चाहिए, यहाँ पर एसिटिक अनहाइड्राइड यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर सोडियम एसिडेट रहता है। ओके, ये बेसिस पे रिएक्शन ये परफॉर्म होगी और आपको फाइनली एक कंपाउंड मिलेगा इसमें। तो कभी भी ये रिएक्शन में कंपाउंड होता है फिक्स कौन सा रहता है, सिनामिक एसिड। चीज ध्यान में रखना, दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिनामिक एसिड। रिएक्शन आप लोग ये डायरेक्शन में देखते रहो नीचे की तरफ। यहाँ पर यूज एक्जैक्टली क्या हो रहा है, इनिशियली यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा एसिडिक अनहाइड्राइड से और यहाँ पर इसका एक एनायन बनेगा और एनायन क्या करेगा बाद में, ये अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन पे विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अटैक करने के बाद में ये जो ऑक्सीजन है वहाँ पर वो हाइड्रोजन चला जाएगा इसको मैं, और यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड है और आपका जो भी था अनहाइड्राइड, तो अनहाइड्राइड पर इनिशियली पहले अटैक हुआ था और वो ए में कन्वर्ट हुआ था। हुआ क्या था, वहाँ पर बेस का अटैक हुआ था, जो डिसऑर्डर में हम लोग उसको रखे थे उसका एनायन बना था, एनायन ने अटैक किया, synthesized B from this A, finally what is happening, H plus ion का अटैक होगा वहाँ पर और ये OH में कन्वर्ट होगा, पर ये OH में कन्वर्ट होता है फाइनली वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। C जो बना था हमारा, C को हम लोग देख रहे हैं after eliminating water molecule we are synthesizing D from this, तो water molecule release होने के बाद में डबल बॉन्ड्स आए थे यहाँ पर। होना ये है कि अगर मैं ये वाले जो इंटरमीडिएट है D, इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इन वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर मेरे को OH ग्रुप अटैच होकर मिलेगा और ये वाले मेरे को H ग्रुप अटैच होकर मिलेगा। सिनामिक एसिड यहाँ से मिल गया मेरा और यहाँ से जुड़ गया मेरा एसिडिक एसिड, एक था मेरा सिनामिक एसिड, दूसरा मुझे मिल गया मेरा एसिडिक एसिड। ये टिपिकल रिएक्शन है जहाँ पर मुझे सिनामिक एसिड सिंथेसाइज होकर मिल रहा है। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, ये भी हम लोग पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडीशन यहाँ पर क्या रहने वाली है, कंडीशन हम लोग को ये यूज करनी है यहाँ पर कि जो भी हमारा अल्डिहाइड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे होंगे आप लोग, बेंजाल्डिहाइड है, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। और यहाँ पर हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं और उसी का हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम एसिड। ये थी हमारी पर्किन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन सुना रहेंगे आप लोगों ने ये रिएक्शन, जिसमें हम लोग को बेंजोइन बनके मिलता है। तो अगेन दिस इज द रिएक्शन where two molecules of aldehydes will condense and form a single compound. So here we are using some reagents. See KCN, what is KCN? तो यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन आप सबसे पहले देख लो, जूम करो इसको। ऊपर देख लो आप लोग, दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं और KCN in the presence of alcoholic and aqueous KCN, what we are doing, there is a shifting of your hydrogen atom। होगा कैसे शिफ्टिंग हम लोग बाद में देखेंगे, किस तरीके से अटैक हुआ था, एनायन बना था उसने अटैक किया था। फाइनली सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही रहता है इसका कि जो बेंजाल्डिहाइड बेंजोइन में कन्वर्ट होगा। सीधी मैकेनिज्म, the above reaction takes place by the attack of cyanide ion, cyanide which is basically a nucleophile, it will attack the positive center, and this is the electronegative effect, that's why the entire compound will get a single charge। यहाँ पर ऑक्सीजन को माइनस चार्ज हुआ है
और ये अटैक हुआ था आपके रिएजेंट की वजह से, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक। हम लोग जो भी बनाया हमारा रिएजेंट, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, so it gets converted into a carbonium ion. Carbonium ion compound A. What is happening here? This carbonium ion will attack the second aldehyde group, the second benzaldehyde. So after attacking, there is a shifting of electron pairs. तो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन पैर्स, फाइनली प्रोटॉन शिफ्ट होने के बेसिस पे और एलिमिनेशन होने के बेसिस पे आपको आपको डिजायर्ड कंपाउंड मिलेगा। सबसे पहले तो प्रोटॉन शिफ्टिंग हुई है, फाइनली लीविंग ग्रुप निकला यहाँ से, आपको मिला है आपका। सो दिस इज योर बेंजोइक कंडेंसेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन में ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो भी हम लोग अल्डिहाइड्स यूज कर रहे हैं दोनों भी रहेंगे डेफिनेटली बेंजोइक, इसके अलावा कोई और मॉडल यूज नहीं कर सकते। दोनों के भी पास में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। तो ये कुछ कंडीशन से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये अगर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे कौन सी वाली रिएक्शन में एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हम लोग अल्डिहाइड यूज करने वाले, किसी में दोनों को भी यूज करना पड़ेगा, किसी में नहीं यूज करना है, ये आप लोग को देखना है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन में डेफिनेटली हम लोग को बेंजाल्डिहाइड्स यूज करने हैं, तो पटकिन में भी करने ही है बेंजाल्डिहाइड यूज। ये चीज खाली ध्यान रखें। इस कैनिज़ेरो रिएक्शन, इस कैनिज़ेरो रिएक्शन when aldehydes are treated with sodium hydroxide means a base to form alcohol and sodium salt of acid। देखिए आप लोगों को समझ में आ रही है ये वाली रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन, two molecules of benzaldehyde in presence of a base. What is going to happen? We are synthesizing the alcohol from this reaction and a salt of carboxylic acid. So alcohol is your benzyl alcohol, salt is your sodium benzoate. Now if we are using two molecules of formaldehyde in presence of NaOH, the alcohol is methyl alcohol and salt is your sodium formaldehyde. Okay. Then next reaction कौन सा है ये एल्डिहाइड? आप में से कोई बताएगा? सर हेलो। हाँ बोलिए ना सर, ये सोडियम फॉर्मिन को सर अपन ये भी बोलते हैं ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही हुआ है, एसिड है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। अच्छा है ना, SCOH किसको बोलते हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं। H रिप्लेस हुआ सोडियम से, सॉल्ट बन गया। तो लास्ट वाली रिएक्शन में कौन सा डाल गया? इज योर ट्राई मिथिल एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ट्राई मिथिल एसिटाल्डिहाइड हम लोग ने यूज किया। तो वो रिस्पेक्टिव हम लोग को अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पर, और ट्राई मिथिल एसिटिक एसिड भी हम लोग मिल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसको नेम थोड़ा सा इलाज करेंगे तो चलिए हम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम दिस इज योर कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्डिहाइड विदाउट ए अल्फा हाइड्रोजन with concentrated NaOH or KOH. The aldehyde undergoes an oxidation reduction reaction. For example, when benzaldehyde is heated with concentrated NaOH, a mixture of benzyl alcohol and sodium benzoate is formed. So exactly reaction basically आप लोग देख लो। The first case यहाँ पर benzaldehyde in the presence of जो भी हमारा strong base था हमारा NaOH, यहाँ पर इसका anion बना है, सॉरी यहाँ पर क्या बनाए? हाँ एनायन बनाए यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड केस देयर मे बी हाइड्राइड ट्रांसफर। सी द रिएक्शन the third case, the third step, there is acid base reaction. एसिड बेस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट देखिए आप लोगों को क्या मिल रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है हमारा सोडियम एसिटेट योर बेंजीन अल्कोहल। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग को अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है,
तो बेंजील अल्कोहल मिल रहा है प्लस सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं केनिज़ेरो रिएक्शन। कुछ और मॉडिफिकेशन है कि इसका है, तो रिएक्शन यहाँ पर दिख रही है हम लोग को क्रॉस्ड केनिज़ेरो रिएक्शन। So two different aldehydes, each lacking alpha hydrogen, engage in a crossed Kenisero reaction when heated in alkaline solution. For example, when benzaldehyde is heated with formaldehyde in presence of NaOH, a mixture of benzyl alcohol and sodium formula is formed. ये वाली रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसमें। रिएक्शन आप लोग के सामने है, crossed Kenisero reaction। यहाँ पर हम लोग ने लिया है बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, दोनों भी अलग अलग है, और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH जो हीट कर रहे हैं उसको, तो हम लोग को बेंजील अल्कोहल मिल रहा है और यहाँ पर हम लोग को सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी रिएक्शंस हम लोग कवर कर रहे थे रिगार्डिंग टू दी अल्फा हाइड्रोजन्स और दी R ग्रुप अल्किल ग्रुप, वो भी हमारे होते हैं। हम लोग को कौन कौन से रिएक्शन किए थे, जो बच्चे भी ज्वाइन किए हैं एक बार टेबल में देख लीजिए कि हमारे रिएक्शंस थे। यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट किया था हम लोग ने अल्डोल कंडेंसेशन से। यहाँ पर हम लोग ने 2 अल्डिहाइड्स लिए थे सेम, ओके, और दोनों कंडेंस हुए थे एक दूसरे में, और हम लोग को एक प्रोडक्ट मिला था, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी था और अल्डिहाइडिक ग्रुप भी था। तो इसीलिए हम लोग उसको अल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड दिया था हम लोग ने, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एक सबसे पहले एनायन में कन्वर्ट हुआ था, उसने अटैक किया था सेकंड वाले पे, और आपको मिला था आपका डिजायर्ड कंपाउंड। ये कन्वर्ट होने के बाद में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है। सेकंड वाला जो था आपका क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन था, इसमें हुआ ये था कि हम लोग ने 2 अल्डिहाइड्स यूज किए थे, बट डिफरेंट थे दोनों भी। तो एक सपोज यहाँ पर प्रोपियोनाल्डिहाइड है, तो सेकंड वाला आपका फॉर्मल्डिहाइड है। ये वाले रिएक्शन में होना ये है कि एक जो अल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरे वाले के पास में अल्फा हाइड्रोजन है। अगेन दोनों मिलेंगे, कंडेंस होंगे, और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें अल्डिहाइड अल्कोहलिक दोनों भी ग्रुप्स मिलेंगे। बस आपको कंडेंस करना है, एक दूसरे को फ्यूज करना है। तो ये थी आपकी क्रॉस्ड केनिज़ेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोग कीटोन और अल्डिहाइड के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। यहाँ पर कीटोन है आपका एसिडोफिनोन, उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और आपके पास में जो एसिटाल्डिहाइड है, ये दोनों मिलेंगे और हम लोग को बना के देंगे रिएक्शन। नेक्स्ट, तो पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। पर्किन कंडेंसेशन में स्टार्टिंग मटेरियल फिक्स है। यहाँ पर अल्डिहाइड हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड यूज करेंगे, बेंजल्डिहाइड, और हम लोग जो एसिड यूज कर रहे हैं यहाँ पर एसिडिक हाइड्राइड है वो, और उसी का हम लोग सॉल्ट यूज करेंगे, सोडियम एसिड। तो ये तीनों चीज़ के प्रेजेंस में होना ये है कि रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो फाइनली आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो डबल बॉन्डेड रहेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डबल बॉन्डेड कंपाउंड मिलेगा। और फाइनली होना ये कि इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करेंगे हाइड्राइड का, तो एसिडिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, और हम लोग को सिनामिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। दिस इज योर पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का था बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड एज एन रिएजेंट इन अल्कोहल। तो दोनों भी फ्यूज होंगे बेंजल्डिहाइड, और आपको मिलेगा बेंजोइन। एक सिंपल वे ये है कि दोनों में होना ये है कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी और आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, बेंजोइन के बाद में देखा हम लोग ने केनिज़ेरो रिएक्शन। केनिज़ेरो में क्या हुआ है, केनिज़ेरो में हम लोग ने स्ट्रॉन्ग NaOH के प्रेजेंस में हम लोग ने रिएक्शन परफॉर्म की। जो अल्डिहाइड हम लोग ने लिया, ये दोनों भी सेम अल्डिहाइड्स थे, और हम लोग को रिएक्ट कराने के बाद में ये वाली जो रिएक्शन है इसमें हम लोग को अल्कोहल मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोग ने, ये एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का मिलेगा और एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा हमको, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले लो, उसके रिस्पेक्टिव आपको अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। केनिज़ेरो के बाद में देखा हम लोग ने क्रॉस्ड केनिज़ेरो रिएक्शन। यहाँ पर करना ये आप लोग को कि आप लोग को 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स चूज करने हैं,
कंडीशन सेम रहेगी, आप लोग को NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन रन करेंगे और फिर आपको अल्कोहल मिलेगा और साथ में आपको सोडियम एसिटेट या जो भी आपको सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा कंडीशन, थोड़ा सा रिएक्शन करेक्शन समझ के चलो, यहाँ पर आपको सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, ये वाली रिएक्शन। ये तो कुछ रिएक्शंस हमारे, बाकी ये वाला तो हम लोग नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी ये है कि हम लोग को कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने के रहते हैं, जैसा हर चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका अननोन सैंपल है एल्डिहाइड और कीटोन, तो आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो कुछ टेस्ट हम लोग लैब में जाके परफॉर्म करते हैं, तो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, हम लोग को कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगा और हम लोग थोड़ा प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ हमारा कंपाउंड है। तो फर्स्ट टेस्ट इज योर DNP टेस्ट। DNP मतलब डाई नाइट्रोफिनिल रिएजेंट हमारा रखा होता है लैब में, तो उससे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये टेस्ट जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिनिल हाइड्रोक्साइड भी डालेंगे हमारे कंपाउंड में, सॉल्यूशन भी डालेंगे हमारा DNP, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रन करेंगे रिएक्शन टेस्ट के लिए। If you are seeing a red or orange PPT, so that shows the presence of both aldehyde and ketone. टोलेंस रिएजेंट, फैलेंस रिएजेंट तो बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं। आप लोगों को मालूम है कि पापा कार्बोहाइड्रेट्स, आप लोग जब बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट दिखे रहेंगे, इनिशियल टेस्ट होते कैसे है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि आपके कंपाउंड में अगर कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और अगर मैं फ्रुक्टोज की एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। एक ग्रुप्स के प्रेजेंस में होता ही है कि ये लोग जल्दी से रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो बेसिस पे रिड्यूसिंग शुगर बनाते हैं ये लोग। तो इनके बाद फ्री ग्रुप्स होने की बेसिस पे रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट अगर मैं डाल रहा हूँ मेरे कंपाउंड में, वो एक टेस्ट होती है प्रॉपर वे में अगर कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगा, रेड PPT दिखेंगी, that shows the presence of aldehyde and ketone। सिमिलर केस आएगा फैलिंग्स रिएजेंट का। फैलिंग रिएजेंट की हम लोग कैसे करते हैं, फैलिंग रिएजेंट A+B हम लोग डाल देते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और आफ्टर हीटिंग जो भी हम लोग को समझ में आ रहा है उसमें भी हम लोग को बिग रेड PPT हम लोग को दिखती है थोड़ी सी, that shows the presence of your aldehyde and ketone। और लास्ट वाली कौन सी, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। So no red color with sodium nitroprusside shows the presence of aldehyde, and red color with sodium nitroprusside shows the presence of ketone। ये कुछ टेस्ट आप लोगों को तो याद करनी पड़ेगी, इसको इतना समझना नहीं, तो बस याद रखो कि कौन कौन सी टेस्ट हम लोग, कौन कौन से रिएजेंट से हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि हम लोग को कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर भी है ये वाले चैप्टर में, कि उनके स्ट्रक्चर्स आप लोग को निकालने हैं, याद करने हैं, उनके यूजेस आप लोग को याद करने हैं। तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स है नहीं है सब, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग देख लो। ये फॉर्मल्डिहाइड सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या यूज होता है इसका ये आप लोगों ने देखना है। परल्डिहाइड बेसिकली ये तो एंटी कन्वर्जन बोल के यूज करते हैं हम लोग परल्डिहाइड। एसीटोन तो आप लोग को मालूम है, नेल पॉलिश रिमूवर बोल के हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, यूज करते हैं। एसीटोन को बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट बोल के यूज करते हैं हमारे लैब में, और डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको नेल पॉलिश रिमूवर बोल के यूज करते हैं। तो बॉयज आप लोग ने तो यूज करना नहीं है इसको। एंड बेंजाल्डिहाइड का यूज क्या है, इट इज यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। तो किसी को अगर क्या दिखा रहा है यहाँ पर, बेंजोइन और थ्रोट इन्फेक्शन हम लोग यूज करेंगे बेंजोइन जो बनाया आपकी बेंजाल्डिहाइड से। सेकंड थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड में भी हम लोग को यूज किया था, हम लोग ने यूज किया था बेंजाल्डिहाइड। फ्लोरोहाइड्रेट इज ए सीडेटिव एंड हिप्नोटिक कंपाउंड। Fluorohydrate, see the structure of fluorohydrate. It is a derivative of your aldehyde. Your aldehyde gets converted into 2OH group. Okay, so there may be I think oxidation of your aldehyde, trifluoroacetaldehyde. You are getting this fluorohydrate. Hexamine is the preparation of phenolic resins. Hexamine यहाँ पर क्यों आया ये मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पर ना aldehyde ग्रुप है ना ketonic ग्रुप है, बट वॉटेवर आपकी सिलेबस में दिया है। सिनेमल्डिहाइड स्ट्रक्चर आप लोग देखो, जैसे सिनेमिक एसिड की बेसिस की स्ट्रक्चर है, फर्क क्या है इसमें, एंडिंग ग्रुप CHO है और सिनेमिक एसिड में COOH है। तो प्रिपरेशन ऑफ सम परफ्यूम्स हम लोग यूज करेंगे इसको, और सिनेमिक एसिड का तो आप लोगों को मालूम है स्वीट ओडर होता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट पे हम लोग इसको यूज करेंगे। वेनिलिन किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर में क्या रहे हम लोग को, ये एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड है, उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हम लोग ने, पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है,
और मेटाबोलिज्म वो CH3 ग्रुप है, सो इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, तो इसको यूज कर सकते हैं, फूड फ्लेवरिंग एजेंट बोल के हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ एग्जांपल्स आप लोग के प्रॉम्प्ट चैप्टर। अगर आप लोग कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप लोग शेयर करिए, हम लोग इसको क्लियर करते रहेंगे। एनी क्वेरीज? यस सर। नो सर। सर मैंने जो आपको सेंड किया था, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ फॉर्मल्डिहाइड। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ फॉर्मल्डिहाइड जो यूट्रोपाइन कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, वो रिएक्शन एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको प्राइवेटली एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, कि अभी मेरे को खोल के देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसमें टाइम निकल जाएगा। अभी जो मैंने मीटिंग क्रिएट किया है 45 मिनट्स की क्रिएट किया है खुद से, और 6:20 से अभी बस 5 मिनट ही बचे उसको हैंड होने में। तो थैंक यू सर। ओके, हम लोग करेंगे उसको। मेरा ऐसा बोलना है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग ने मेरे ख्याल से क्विज में कर लिए थे, सबने क्विज दिया था। हाँ सर। हाँ दिया था ना क्विज। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है आप लोग को, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ईमेल आईडी पे which class of compound is an example of a carbonyl compound? Tell me the options 1 2 3 4. which class of Carboxylic acid? Yeah. कार्बोक्सिलिक एसिड। yes sir Question number 2. Which molecule is an example of a ketone? C C, propane 2-one. Propane 2-one. Okay. Next question. Conversion of an aldehyde to an alcohol is generally known as? ऑक्सीडेशन। मैं तो सोचा था यार हम लोग क्लिक कर करके सबमिट करो, हमारा स्कोर देखिए यार, ये होगा तो अच्छा नहीं बात। रिस्पॉन्स रिसिपिएंट, ओके ऑलवेज। ओके, इसको सेव कैसे करना है? सेव ऐसा करना है। हाँ चलो, आ रहा है क्या नहीं आ रहा? चलो खैर छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ एन aldehyde टू एन अल्कोहल इज जनरली हो गया सर ऑक्सीडेशन। oxidation, yeah, Yes, sir. good. Oxidation. Next question. The products of a reaction of an carboxylic acid and an alcohol would be acid and alcohol. Ester and water. Good. Ester and water molecule. C. Carbon atom of a carbonyl group is C11O. sp2 hybridized. Two hybridized. Okay. Can you say no reaction is not given by Formaldehyde. ये question Formaldehyde. सर सी एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, किसको लग रहा है? एसिटाल्डिहाइड लग रहा है सबको? हाँ एसिटाल्डिहाइड। ये देखो, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। बेंजल्डिहाइड में है? नहीं। नहीं। ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड में है? नहीं। बचा क्या? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। So ketones are comparatively less reactive than aldehyde. It is due to alkyl groups are electron donating. alkyl groups are electron donating. Very good. ये मुझे लग रहा है सही आंसर। Any other answers? ये सही लग रहा है मुझे, No. है ना? क्योंकि alkyl group से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो बेसिस में यहाँ पर ये इफेक्ट हम लोग को दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following do not give aldol condensation reactions? Again, good question for us. फॉर्मल्डिहाइड। But, तो यहाँ पर तीनों की जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म। फॉर्मूला ऑफ हेलो फॉर्म इज सर बी सी लग रहा है सी। Okay. तो करस्पॉन्ड किससे कर रहे हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से। तो CH3 वहाँ पर रहता है, वहाँ पर हाँ CH3 रहेगा यहाँ पर। ओके, तो जो भी रहेगा हैलोजेंस। ओके, aldehydes and ketones have same general formula for homologous series. ये क्वेश्चन है, पहले तो आ गया था ये। सही कर रहे हैं। aldehyde मेरे लिए हिंदी ये रहेंगी कि आप लोग किसी एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लो। यहाँ पर CHO को पकड़ लो,
सर सर CnH2NO. ई वाला क्या? यस सर NO. Any other answers? तो हम लोग देखते हैं कोई अल्डिहाइड, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन को हम लोग N को नंबर 1 दे देते हैं सबसे पहले, कार्बन एक ही है ना उसमें। हाइड्रोजन को भी हम लोग नंबर 1 दे रहे हैं, तो H2 into 1 2 हो गया वो, है ना। और ऑक्सीजन तो एज इट इज एक ही रहता है उसमें, है ना। तो फॉर्मूला इज करेक्ट, CnH2nO, बराबर है। थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम लोग को एक स्ट्रक्चर बाजू में रख के कैल के फॉर्मूले को लगा के, अगर एक कार्बन है तो एक लगा के हम लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बी सर Aldehyde. aldehyde. डर रहा है, क्वेश्चन भी डर रहा है आप लोग से। Oxidation of primary alcohol gives aldehyde. Question. Nucleophilic addition reactions are catalyzed by. सर स्क्रीन नाही दिखे बरोबर, सर स्क्रीन नाही दिखे बरोबर, जी सर स्क्रीन नाही दिखे नहीं दिख रही है रही बरोबर, दिख रही है सर। सर मतलब आपको, आप बालकनी में बैठो। सर तो आंसर क्या दिख रहा है? बेस Yes. बेस Yes आंसर। यस सर, मेनली बेस यूज होता है एसिड मतलब सिलेक्टिव रिएक्शन में यूज होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। और मैंने क्या बोला था आप लोगों को? Catalyzed. एडिशन इज कैटलाइज्ड बाय बोथ बेस, एसिड हाँ। एंड बेस। याद आ रहा है क्या? बोथ ए एंड बी मैं क्लिक कर रहा हूँ आंसर पे, आंसर कौन सा दिख रहा है? सी, बोथ ए एंड बी। बी Next question. Ethanol. Ethanol is prepared industrially by air oxidation of ethylene using palladium chloride as a catalyst and dash as a promoter. TDCO2 नहीं, सर सी बी बी वाला B. CU2 Cl2 ए और सी सर हाँ ऑप्शन सर ए और सी में सर और सी में 50-50 करूँ क्या? हाँ ए मेरे सर यस मेरे लिए हिंट आप लोग, चलो मेरे लिए हिंट आप लोग के लिए बी और सी है। दो क्वेश्चन निकल गए यहाँ से। बी सर आंसर बी वाला एनी ऑफ द अबव Which is best? Boys are the best or girls are the best? सर बी हाँ, आंसर बराबर। तो बी सर सी मैं क्लिक कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो चुका है। आंसर इज योर CuCl2। अरे यस राइट है सर्टिफिकेट में मालूम नहीं आप लोग क्या मिला है? अल्डिहाइड। अरे यार 62% है सर। प्राइमरी अल्कोहल जल्दी से भगाओ। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी ये क्लिक का मसला हो जाता है। अल्डिहाइड का reduced to primary alcohol. Okay. In base catalyzed reaction of carbonyl compound, the catalyst what is doing? Base catalyzed. तो सबसे पहले मैंने सुना था कि कैटलिस्ट पहले एक्ट करता है ना आपके, तो रिएजेंट है। बोथ ए एंड बी बोथ ए बी क्या था? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट बोथ ए एंड बी। एनी अदर आंसर्स? सर खाली बी लग रहा सर एक तो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल यूज किया था जो वीक था, बाद में स्ट्रांग हो गया था वो। आंसर इज योर ए। ए होगा। बराबर। तो 2 मिनट ही बचे तो हम लोग जल्दी से करते हैं। Which one exhibits aldol condensation reaction? जल्दी बोलो। अच्छा aldol अल्फा aldol बीटा 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 A B C D कौन सा है? सेकंड वाला CHO so last one ट्राइंगाना डेफिनेटली। सर आपकी D last one D वाला Okay, so D is correct. Ketones are prepared by the oxidation of सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शरी secondary touch secondary बाबा secondary सेकेंडरी alcohol. Which action best accounts for the solubility of aldehydes and ketones in water? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग bonding पक्का?
देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सोल्यूट इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये जरा थोड़ा घुमाया था ना क्वेश्चन, ये ध्यान में रखने की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has highest boiling point? फॉर एग्जांपल्स में आपके पास में कीटोन्स है बहुत सारे, और कीटोन्स में बहुत सारे एग्जांपल देख लो आप लोग। एक सर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट नहीं आएगा? हेक्सेनॉन चेक करते हैं। डेफिनेटली सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? हेक्सेन का। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना ब्रेक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन कंटेन्स 9 sigma plus 1 pi bond. So A1. Answer is your A, 9 sigma bonds and 1 pi bond. Diamond. On heating aldehydes with Fehling solution, we get a precipitate whose color is भी देखा था हम लोग ने। किसने गलत बोला? ब्रिक रेड। नाम के टाइम पे चाय पीते हो? चाय पीते हो तो याद रखना चाय का कलर क्या रहता है। तो आंसर इज योर ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, formalin consists of a mixture of formaldehyde, methyl alcohol and water. Percentage of water in it is 8%. 8. 60. 52. आप 50 भी बोल दो कोई नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ बोली लगाओ। सभी हो गए। 50%। सब अलग अलग ऑप्शन बोल रहे नहीं, बोली लगाओ, बोली लगाओ, बोली लगाओ, सब लोग बोली लगाओ। हैं। लास्ट वाला सर। सर सी किसको लग रहा है? C 52. लगा था सर। सर आप लगी। क्वेश्चन स्किप सर। 52. राइट 2% पे क्या फर्क है? करेक्ट आंसर क्या है? 52. 52 और 52. सी दैट इज 52। बोली लगाती नहीं हो बराबर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आंसर राइट है। क्या मालूम करोड़पति में भेजना कि नहीं तुम लोग को। तो which of the following reagents will react with Grignard both? reagent. हाँ, Grignard reagent पहले। क्वेश्चन में बोथ की बारी आई है, मतलब ग्रीनार्ड की रहेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Grignard reagent सबके साथ ही रिएक्ट करता है। which of the following compounds will react with Tollens reagent? सर ए ओके, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन भी है, अल्केन भी है और अल्डिहाइड भी है। Aldehyde. सर ए तो यहाँ पर आंसर इज अवर ए, वेरी गुड, इज योर अल्डिहाइड। Aldehyde. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म ए साइनोहाइड्रिन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, कल देखा था हम लोग ने ये रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Nucleic addition. क्वेश्चन डर रहा है, आराम से बोलो, आराम से। Your nucleophilic addition reaction. Now next question, which of the following compounds is the strongest acid? हाँ, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। सही चाहिए सी चाहिए। सी वाला। Yes. Okay, due to substitution of halogens on creatine. Halogen. Okay. Electron withdrawing group. Which of the following will give acetic acid on acid hydrolysis? Acetic acid. एसिटिक एसिड और Ethyl acetate. Ethyl acetate. सर मिथाइल प्रोपेनॉन सर सी आई थिंक सो C. सर मिथाइल प्रोपेनॉन आई थिंक सो C या A 50-50. तो लॉग लगा लेते, लॉग लगा के अभी ए और सी पर, ठीक है, ये नया करोड़पति अपना। सीऊंगा सर सीऊंगा आई थिंक तो एग्जैक्ट आंसर इज योर ए। सर अभी मेरे को एक चीज बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये कि ये जो एक फ्रेगमेंट है अपने पास, उसमें इथिल ग्रुप भी है, एसीटेट भी है। एसीटेट मतलब क्या? CH3COO माइनस। यस डेफिनेटली इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एसिडिक एसिड क्वेश्चन था। This question, the characterization reaction of carboxylic acids is carboxylic Electrophilic addition. एडिशन है कौन सी होगी? ओके, न्यूक्लियोफिलिक है। वो दोनों अपोजिट ही हुए ना।
यस सर। आपको देखना है कौन सा करना है, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। सी द आंसर। Sir, electrophilic. न्यूक्लियोफिलिक सर सब्स्टिट्यूशन Substitution. रिएक्शन सर डी लगा। एडिशन रिएक्शन। of कुछ क्वेश्चंस बचे फटाफट हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पीडी ऑन BaSO4 gives पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। sir benzyl alcohol. Benzyl alcohol. बेंजोइल क्लोराइड मतलब क्या? फिनिल रिंग बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कौन सा कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजीनेशन मतलब क्या? हाइड्रोजन ऐड होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड किस पे होगा? Yes sir. हाँ. एसिड क्लोराइड Benzoyl पे। chloride. देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर रहेगा मेरे ख्याल से सर अल्डिहाइड। यस। यस। Next question is when propionic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate, carbon dioxide is liberated, the carbon comes from कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. CO2 is liberated. This is basically decarboxylation reaction. The carbon is coming from. Carbox. तो हिंट ये रहेगा कि आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए या आपका बाइकार्बोनेट, दोनों के पास भी CO2 है, बराबर। तो ये बेसिस पे करेक्ट आंसर आई थिंक रहेगा डी। देखते हैं। सर यस बाइकार्बोनेट। सर बेंजील क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम लोग। B चाहिए. B. C. क्लोरीनेटिंग एजेंट कौन सा दिख रहा है देख लो अभी आप लोग। सर सी सी वाला। सी C वाला. यस Cl2। CO2 हाँ तो सर तो 3-4 क्वेश्चन बचे हुए देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या मालूम यार टाइम ले नहीं रहा है वो, तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हेक्सेनॉन। हेक्सेनॉन। रिपीट हुआ सर इक्वेशन शायद। नहीं वो दूसरा था, इसमें अल्डिहाइड कीटोन का कॉम्बिनेशन है, उसमें सिर्फ कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन्स? D. पहली Is not shown. पहली तो अभी हम लोग ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा था ना, पहली एक्टिविटी मिल रहा है। Is not. सर डीएनपी भी सी देखिए। सी। अरे डीएनपी भी तो देखा था अभी। अभी डीएनपी पहला ही टेस्ट देखा था ना हम लोग ने टेबल में। सर बोल रहे सर हाँ हाँ। सर बी क्या कर रहे हो यार तुम? D वाला. डी वाला। बचा गया वही बोलेंगे ना आप लोग। रिएक्शन इज फॉलोइंग फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। नॉट शोन। ये तो होता है आई थिंक, मुझे जितना लग रहा है ना। चलो देख लेंगे इसको बाद में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे ज्यादा है सर डी है। Sir, what Option D. A? ए वाला. ए होगा। इंक्रीजिंग बताना। A sir. सर सी शायद नहीं A वाला. लगा सर। लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, हम लोग देख लेते क्या सही है। क्लोरो एसिडिक एसिड यहाँ पर जब दिखा रहा है तो वही रहेगा ना। है सर सी। Sir A. डेफिनेटली जब आपके पास में क्लोरो एसिडिक राइट एसिड है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। हाँ। सर लेकिन फिनॉल ज्यादा. नहीं फिनॉल Halogen है ना, इसलिए। ठीक एसिडिक कंपाउंड है फिनॉल, यस सर। पहले ही बोला गया है उसके बारे में। तो फिर लास्ट. लास्ट वाला नहीं, क्लोरो एसिडिक एसिड सर तो हाँ सर तो फिर Option number वो C. जाना उल्टा। बराबर है। तो आप लोग साइन देख लो, साइन नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ पर दिख रहा है? Which is the most suitable reagent for the following conversion? टोलेंस। Tolerance reagent. Tolerance? जी सर। यस सर। Answer is your. सब गलत आ रहे। तुक्का हो गए. Anyway solution. Telling it Answer to is kill. your. Anyway solution in iodine. Okay. Next question पे आते हैं हम लोग. Which of the following compounds will give butanone on oxidation with alkaline KMnO4 solution? Oxidation करते हैं हम लोग.
और कीटोन मिल रहा है हम लोग को, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग को मिल रहा है सर कीटोन। सर Gluten to all. सर भी to all. To all. यस वेरी गुड, यू कैन डू ऑल। आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन बचे। स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज इन द बिलो रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। ए भी बताना है, आइसोमरिज्म भी बताना है। सर सी GSO4 हम लोग ने किया था, ये ज्योमेट्रिकल नहीं किया था। ना सर सी टॉटोमेरिज्म अल्काइन का कन्वर्जन हुआ था और टॉटोमरिज्म भी हुआ था। एक रिएक्शन देखा था हम लोग ने। बी या डी में से? सर डी होगा शायद से, पक्का नहीं हो सकते सर। बी या डी में से कोई? सर डी है ना, सर राइट है, डी राइट है। अभी OC1 आप लोग से डर रहा है, मेरे को ऐसा लग सर रहा है। एलिमिनेशन के उससे तो ऐसा कर रहे हैं अभी भी। बोल रहा हूँ ना मैं, OC1 अभी डर के भाग जाएगा, कभी आएगा नहीं आपके सामने, अब सिर्फ OC2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the reagent which does not react with both acetone and benzaldehyde, acetone and benzaldehyde, aldehyde and ketone, एसीटोन एंड बेंजल्डेहाइड। ऐसा कोई रिएक्शन? फिनाइल हाइड्रोजन होप सो नहीं है। तो अभी टेबल में देखा नहीं था, नहीं है। तुक्का तुक्का। टेबल में देखा नहीं था ये पहला रिएक्शन DNB वाला। फेलिंग सॉल्यूशन शायद ए नॉट रिएक्टिंग। मुझे भी ए लग रहा है। सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फैलिंग तो जरा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। फैलिंग में अपन Failing तो कमजोर हो हर गए, जगह मैंने बोला था। फैलिंग में थोड़ा कमजोर हो गया अपन, बायोकेम पढ़ना पड़ेगा अपने को। कार्बन एंड ऑक्सीजन। The शॉर्टर double bond between carbon and oxygen is similar to an alkene C double bond O. C double bond C, except that C double bond O is बी बी हाँ अच्छा क्वेश्चन। शॉर्टर एंड वीक बी सर बी। शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर। नहीं होगा ना बोली लगाओ बाबा आप लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सर बी ए लगता है। सर बी बी। सर बी करेक्ट। हाँ बी। स्ट्रॉन्गर। एसिटल एसिटल ऑन हाइड। इतने क्वेश्चन दिया था कि मैंने, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। एसिटल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस जनरेट्स। सर सी सर अल्कोहल सर सी सर बोथ एंड बोथ एंड भी। हाँ यस सर। से नंबर हो गया ये क्वेश्चन। This is the last question. Which of the following is not a use of formaldehyde? In making सिल्वर मिलर। सर बी आई थिंक। नॉट यूज। सर डी। Last question है। सर मेडिसिन बी। Medicine सर बी है सर। हाँ सर बी पक्का है, ऊपर बी बोले। तो क्या पक्का है क्या झूठा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अच्छा अरे यार बोलो। Whatever आप लोग के जो भी स्कोर आए रहेंगे आप लोग को मालूम रहेगा सर्टिफिकेट पे। तो ये था हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड का एक अच्छा टेस्ट। 62 अच्छा, गुड अच्छा है। तो वेबिनार ज्वाइन करते रहो, आप लोग को कुछ ना कुछ ये सर्टिफिकेट्स मिलते रहेंगे, है ना। यस सर। अभी हम लोग को हो चुका है OC1। रही बात हमारे वीडियोस की, तो मुझे मिल गया एक मेथड, मैं अभी बस आप लोग को अपलोड करके दे दूंगा, तो मैं इन्फॉर्म करूंगा अपने ग्रुप पर, ठीक है। ओके सर रोल नंबर नोट कर लीजिए आप। रोल नंबर्स? हाँ सर। हाँ सर। भाई तो रोल नंबर्स का आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट कुछ ना कुछ जनरेट हो जाती है जूम में, हम लोग के पास रिपोर्ट है आप लोग की। अरे तो ये वही बच्चे बोलेंगे जो फिलहाल प्रेजेंट है, 19 बच्चे जो शाम में प्रेजेंट दिखा रहे हैं, बाकी सब गायब है। तो ठीक है, अच्छी बात है आप लोग ने प्रेजेंट की है। तो हमारा OC1 तो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम पर्सनल में आप लोग डालो मैसेज, हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है। तो अब से हमारा क्या रहेगा कि एक सर हफ्ता में। OC2 के लिए रेफरेंस सर बुक। एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, अपने बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी एक ही चीज रहती है अलग? डिसोसिएशन में जरूरी नहीं है कि हम लोग को हीट करना पड़े, बात समझ में आ रही है। जी। बट बॉइलिंग में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है बट हीट करना पड़ रहा है ना। तो या तो हम लोग कोई कैटालिस्ट यूज करके या हम लोग कोई रिएजेंट यूज करके भी डिसोसिएशन कर सकते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग को हीट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग फिर आज की मीटिंग एंड करते हैं, और जो भी क्वेरीज रहेगी। हाँ बोलिए। OC2 के लिए रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस बुक आप लोग के लिए ऐसा है OC2 कि के लिए रेफरेंस बुक। देखो OC के लिए कभी भी हम लोग के फार्मा में 3-4 बुक को हम लोग आइडियल बनाते हैं।
उसमें एक बुक रहती है हमारी बाल एंड बाल कभी भी बेस्ट, और इसमें कुछ कंटेंट हम लोग को नहीं मिलता है या थोड़ा सा डीप नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं मॉरिसन बॉयड को यूज करते, या हम लोग एसके घोष को यूज करते, या अगर आप लोग को पढ़ना है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस अभी आने वाले आप लोग को, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए सानियाल बोल के एक बुक होती है, सानियाल। ये कुछ बुक्स होती है जिसको हम लोग रेफर करते हैं आमतौर पर। सर आप ग्रुप पे मैं आप लोग को टेक्स्ट करके डाल देता हूँ, ठीक है? यस सर, तो ये बुक्स हो तो, और इनकेस अगर कुछ पीडीएफ मेरे पास हुए कोई बुक्स के तो वो भी हम लोग देख लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।